Okay, can you all see the screen, Burhanuddin? Yes, yes. Okay, so yes, we are starting a new chapter. So this is our okay. So chapter name is sequencing. Now, guys, what do you understand by the word sequencing? What do you understand by the word sequencing? Yes, Continue pattern or maybe. continuing pattern. Okay. So normally business में क्या होता है कि when you manufacture a product, okay, it goes from machine A to machine B, machine B to machine C. Okay. Do you know that? मशीन ए से प्रोसेस नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, राइट ना? So accordingly the Yes, work sir. is carried on, but it is not necessary that the sequence of the jobs will be same. So as we know that there is always batch production which is carried out in a business कि batches में production होता है, ठीक है? So these are called jobs. Okay, and it takes time. So if you see on the screen, I have written different jobs, and machine two machines are written, and on that there is number of hours which is written. Do you see that? Okay, so what is the role in sequencing? That we have to reduce the time of production. अभी इसमें entire production carry out करने को कितना time जाएगा, that we have to find out. Okay, so we have to find out at elapsed time. Elapsed time means the entire time required for production. Okay, which is minimum we'll be taking. Okay, and the second is idle time. There are two things that we have to calculate. One is minimum elapsed time, and second is the idle time. Okay. Yes. So shall we begin? In case if you face any doubt, difficulty, you can unmute yourself and you can talk. Okay, you can ask your query, because I'm just shutting down the chat box because I want some space to write over here. Okay, now first what we are going to do is, first we are going to do the sequencing part. So what we are going to do is, we are going to do this. This is vertical. I'm going to write this in horizontal form. Okay, so this is my solution. My solution begins from here. Okay, so what I'm going to do is, I'm going to write everything jobs in okay, this is already going in vertical form. Okay, is this clear to all? Yes. Okay, now what I'm going to do is, I'm going to show you how we sequence. अभी sequencing कैसे करेंगे, ठीक है? So सबसे first what we are going to find out is the minimum out of this. The minimum out of this. So what is the minimum number out of this? 1. Okay, this is the minimum number. This is the minimum number, right? 1 is the minimum number. Out of all of these, 1 is the minimum number. So this is on top. Okay, this is on top. जो भी top में रहेगा ना, वो start of the इसमें आएगा, start में आएगा. Whose microphone is on? Yes. ओके, जो टॉप पे रहेगा ना, वो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है? नाउ आई एम मेकिंग द सेल मैट्रिक्सेस, because why I have to sequence the activities. 5 activities I have to sequence. So which is going to come first, which is going to come last? Okay, हम लोग को वो देखना है, ठीक है? Okay, so 1 is in the beginning. So one machine job 1 will be carried out first.
Job 3, in fact. Got it? Got it, everyone? Why job 3 will be carried out first? Because this is on top. If top पे रहेगा ना, ठीक है, टॉप पे अगर आया तुमको लीस्ट वैल्यू, देन इट विल गो ईयर. इफ बॉटम में लीस्ट वैल्यू आया, इफ इट्स ऑन बॉटम, ओके, बॉटम में लीस्ट वैल्यू आया तो इट विल गो फ्रॉम द लास्ट. सो इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट रूल. Okay, if you get a least value in the top, then it will be coming in the first. Okay, and proceed. If you get at the bottom, then it will be from the last. Is that understood to all? Yes. Yes, sir. Yes. Now मेरे को बताओ सेकंड लीस्ट वैल्यू किधर है? अभी ये हो गया, ठीक है, दिस इज डन. Second, ये डन हो गया ना, तो machine B. ये डन हो गया तो इसको कैंसिल कर दो. हाँ सर. ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन सा है? मशीन. 2. नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो इसको मैं सर्कल करता हूँ. ये बॉटम में है, मतलब ये कहाँ पे गो इन द लास्ट. Got हाँ it? सर. Now this is done. Cancel this. Got it? Now next. Job 1 machine 3 Job 1 and machine machine 2. 3. तो इट बॉटम में है, हाँ हाँ. तो फिर लास्ट में आएगा. इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है, अभी 2 के आगे वो नहीं जाएगा, 2 के पहले आएगा. सो दिस विल गो मशीन 1, आई मीन सॉरी, जॉब 1 ओवर हियर. नेक्स्ट वही कैंसिल हो जाएगा. 4 Job 4 sir. टॉप, यहाँ पे आएगा 4 एंड द नेक्स्ट. 4. Last remaining 5. So this is the sequencing pattern which we have found out. Is that clear? Yes sir. Yes, everyone rest. Charan, apart from you, nobody has replied. What about rest? What about rest, guys? Yashoda, Jerome, Samad, Ayush, Nachiket, Rutuja, Bhargav, शिफा, आशुतोष, प्रियाशा. मेरे को सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, मुझे अनम्यूट करके मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग बोल सकते हो करके. You all can unmute yourself, Jishan, because I have to open the chat box again and again because I need space to write. So in case किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ अनम्यूट करके तुम लोग बात कर सकते हो, ठीक है? Okay, so now we have to solve the sum, ठीक है? So I'm making the columns for the sum, ठीक है? ये solution का part है. Jobs, ठीक है? अभी sequencing pattern क्या है? ये कोण कोण येतं तेवढं आधी सांग कोण कोण येते टेस्ट उर्मिला चाई बोलली आम्ही 5 जणीच आहे काय माहिती 10 पण होते नीरज, नीरज, हेमा आहे नीरज. कंचनचं म्हणजे सोनी बाबी पण होते. Okay. Is that clear to all? Is it clear to सागर, बुरहानुद्दीन, Yes, yes. इसका माइक चल रहा है यार. सर यहाँ पे किसी का बता नहीं रहा, सबका बंद ही बता हाँ, रहा है. मुझे भी वही दिख रहा है. ठीक है, ओके. Yes, so now we'll have to solve this. Okay, machine A and machine B. So first, always it's machine A, ठीक है? In and out, in and out.
Have you understood this? I have just made the table. Okay. I just made the table. Okay. Now in out का मतलब क्या है? What do you understand by this in and out? सर रॉ डेटा इन एंड फिनिश प्रोडक्ट आउट ना सर. Raw. रॉ जो ये है सर रॉ मटेरियल्स एंड ऑल वो इन जाएगा एंड फिनिश प्रोडक्ट आउट आएगा. यहाँ पे लेकिन हम लोग वो प्रोडक्ट को इन आउट नहीं करने वाले, हम लोग टाइम को इन आउट करने वाले. ठीक है. ओके सर. सो मुझे बताओ, कोई भी अगर हम लोग जॉब स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम होगा, राइट? सो वो Yes, टाइम, दैट टाइम विल बी व्हाट 0 hours व्हेन वी आर बिगिनिंग. ठीक है. मैं अगर समझो आज लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में 8 बजे. ठीक है. तो टेक्निकली मैं 0 टाइमिंग पे स्टार्ट कर रहा हूँ. अगर मेरा लेक्चर 1 बजे खत्म हो रहा है तो मैंने कितना घंटा काम किया है? 5 hours. यस आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट वो मेरा टाइमिंग जो है, स्टार्ट टाइमिंग क्या है? बाय क्लॉकवाइज यू विल से 8. By clockwise you will say Yes, 8, sir. but time wise what you will say, it is 0. Start time is 0. तो स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर 5 hours प्लस हो रहा है मेरा, बराबर ना? यस तो सर. यहाँ पे जॉब नंबर 3 कब स्टार्ट हो रहा है? 0. 0. ठीक है. लेकिन उसको कितना टाइम लगता है करने को? जॉब नंबर 3 को कितना टाइम लग रहा है करने को? 1 hour. 1 hour. So what will be its timing? 0 plus 1 is 1. equal to 1. 1. ओके. नाउ मशीन ए से अगर वो जब बाहर आएगा वो किधर जाएगा? बी में. बी में जाएगा. तो इन टाइम क्या रहेगा? 1. समझ में आया? 1. मतलब 1 के टाइम पे ही वो इन जाएगा. यहाँ से जैसे बाहर आएगा वहां पे इन हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है. अभी वो Out. आउट कब होगा? देखो 1 प्लस 5. किधर है जॉब 3 का? 1 प्लस 5. तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6. ठीक है. अंडरस्टूड? अब ये 6 Yes, sir. आ रहा है. मशीन ए 1 पे फ्री हो गया. मशीन ए, बराबर ना? मशीन ए 1 पे फ्री हो गया तो मशीन ए अपना दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है. हाँ सर. तो मशीन ए कब स्टार्ट कर सकता है? 1 पे स्टार्ट करेगा, बराबर इसमें ना? सर 1 होगा ना सर. हाँ 1 पे स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि ये 1 पे फ्री हो गया ना यहाँ पे. हाँ हाँ. तो 1 पे से Yes, एक्टिविटी sir. स्टार्ट हो गया 4 का. तो 4 को और कितना टाइम है? 4 घंटा है. 1 प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 5. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? अभी ये कब स्टार्ट होगा? नहीं, ये 5 में बाहर आया ना, अच्छा. तो ये 5 में ही स्टार्ट होगा ना यहाँ पे. क्या सर. 5 plus 6. ओके. अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 में इट विल बी 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 11. So have you all understood this basic idea? Yes sir. Yes, sir. Just a moment. Yes, next one. Yes guys, next one. 5. हाँ, यहाँ पे स्टार्ट कब होगा देखते हैं अभी. 5 एक्टिविटी at 5. Okay, it has how much hours? 5 plus 5, 10. that is 10. Okay, now okay, just pay attention to this now. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो. ओके. मशीन बी, मैं भी ना ये स्पेसिफिक तुमको क्लॉक के हिसाब से बात करूंगा. 6 बजे मशीन बी ऑपरेट हो रहा है. ठीक है. मशीन ए 5 बजे, ठीक है, 5 बजे खत्म हो जाता है मशीन ए का काम और वो बोलता है मशीन बी में जाने को. तो वो एंटर कर पाएगा क्या? नहीं, 6 बजे तो खत्म हो रहा है मशीन. 6 बजे मशीन बी का काम खत्म होता है.
मशीन ए बोलता है 5 बजे मेरा मटेरियल प्रोसेस हो चुका है, अभी तुम मशीन बी में ले लो, तो मशीन बी ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन बी क्या बोल रहा है, मेरे यहाँ पे 6 बजे तक काम चालू है करके। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6। ऑब्वियसली 6 आना चाहिए। अंडरस्टूड? सो हम लोग क्या करेंगे हमेशा, जब भी ये ऐसा कुछ रहेगा ना, हम लोग ये कॉलम, मशीन बी का आउट कॉलम और मशीन ए का आउट कॉलम चेक करेंगे। समझे क्या? और जो ज़्यादा रहेगा ना वो मशीन बी के इन कॉलम में आएगा। अंडरस्टूड? जो ज़्यादा रहेगा वो सर मशीन हर बी, हर बार ऐसा यही करना होगा, पड़ेगा ना? हर बार यही होगा। समझे क्या? अभी यहाँ पे भी देखो, मशीन बी का आउट टाइम यहाँ पे 12 है, ठीक है। मशीन ए का यहाँ पे आउट टाइम क्या है, 10 है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12. 12 आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोग? उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, अभी यहाँ पे कितना आएगा? 12 प्लस 5 का मशीन बी में कितना है, 7, तो दिस विल बी 9। 7. 12 plus 7. So this goes on concept of whichever is higher, ठीक है। So this will be 10 plus or 10 plus number 1 8 is equal to 18। Got it? तो यहाँ पे 18 19 में हायर कौन सा है? 19। तो 19 plus 3 is equal to 22, ठीक है। यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा कितना है सेकंड का, 4. प्लस 4. 4 इज इक्वल टू 22। यहाँ पे मशीन बी का इन टाइम देखो इक्वल है अभी, तो हम लोग 20. हाँ. सेम है। और 22 प्लस 2 2. इज इक्वल टू 24। ओके, तो हम लोग को आंसर मिल गया। मिनिमम elapsed टाइम जो है दैट इज 24 आवर्स। अंडरस्टूड? ये जो फाइनल आंसर होता है ना यहाँ पे जो कॉर्नर में आता है, दैट इज कॉल्ड अ मिनिमम elapsed टाइम। मिनिमम elapsed टाइम मीन्स कि एंटायर मशीन को प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. idle time of machine A and idle time of machine B, there are two machines, so we have to check which machine is remaining idle for how much time. Okay, so it has a formula. Okay, elapsed time minus total time of machine. You can write down the formula. Okay, you can write down the formula. elapsed time minus total time of machine है, so just calculating the total time of machine है, yes, got it? Have you all understood this? Yes, sir. Okay, so we have to calculate idle time of machine A. So this will be 24 minus 22, 2 hours, and this will be 24 minus 23. Machine B is idle for 1 hour. Is that clear? Yes. Okay. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो लेट्स टेक वन मोर सम, ठीक है। तुम लोग भी साथ में करना भी ये सम, ठीक है। आई एम कीपिंग द सॉल्यूशन इंटैक्ट एज इट इज। What I'll do is we'll change the values. The important part over here is sequencing the activity, हाँ, ठीक है। Okay, so this is 16,
8, 2, 8, 10. Okay, 6, 4, 10, 12, 14. Okay. Is that clear to all? Yes. Yes. Yes, sir. अभी क्वेश्चन मैंने दे दिया तुमको. Yes, this is a question. ठीक है, that 44 and 46 is not required for us. How will we solve this now? Sequencing. कौन बताएगा? फर्स्ट क्या आएगा सबसे पहले? थर्ड वाला जॉब. थर्ड वाला सर. जॉब 3 आएगा. मशीन ए. क्योंकि ये मिनिमम है तो ये कैंसिल आउट करो. यस सर. ठीक है, दिस इज डन. तो ये सेकंड वाला क्या आएगा? नॉट टिल नेक्स्ट. 2 के बाद सेकंड लीस्ट नंबर क्या है? लीस्ट नंबर 6. 6 नहीं, 4 ना. हाँ 4. हाँ हाँ. और नीचे है, बॉटम में है तो लास्ट में जाएगा. 2 तो लास्ट में ही है. लास्ट है. ठीक है. व्हाट अबाउट 2 4 के बाद क्या आएगा? 6 फर्स्ट वाला. बॉटम में है. 2 के बाजू में 1 है. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ सर. नेक्स्ट 8. मशीन ए 8 ऊपर जाएगा ना सर. सेम सीक्वेंसिंग सेम है दोनों के लिए. यस सर. बराबर ना. 4 और 5. बचा 5. ठीक है, गॉट इट. अभी टेबल. अभी हाँ, टेबल सर. बनाना है. ठीक है, अभी टेबल कैसे रहेगा? जॉब्स में इन 0 पे 3. रहेगा 2 ना, इज इक्वल टू 2. नहीं सर 212. ठीक है, अब मैं फाइनल ये मैं ना फाइनल कैलकुलेशन करता हूँ. ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ अभी. ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस. फाइन. नेक्स्ट क्या सर रहेगा? ऐसे नॉर्मली रिटर्न पेपर हुआ तो हमें वो एडिशन वाला बताना है सर. ये बताना ना तुम लोग. प्लस. इसके लिए तो मैंने वो करके बताया ना. इसके लिए तो मैंने करके बताया. अच्छा अच्छा. इसलिए मैं वैसे ही रखता हूँ, रहने दो. 0 प्लस हाँ 2 सर. और इक्वल सर टू. बोलो. फर्स्ट टाइम में सीक्वेंसिंग ही रॉन्ग हो गया तो पूरा सम हाँ, रॉन्ग ही जाएगा. पूरा सम रॉन्ग होता है. स्टेप्स के बाद में मार्क्स. हाँ, अभी देखो इसमें ना, अभी अपना एग्जाम अगर रहता है ना, तो एग्जाम में क्या सीक्वेंसिंग का तो मुश्किल है कि सम आएगा. सम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बेसिक फार्मूला से तुमको आइडल टाइम कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसा कुछ, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पे क्वेश्चन आते हैं. इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, दोस आर द पार्ट ऑफ द एग्जाम. ओके, सो लर्न दिस प्रॉपर्ली. एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हो. So this is 2 plus 10. How much? 12. 2 plus 10 equal to 12. Clear with that? अभी ये कब स्टार्ट होगा? 2 पे स्टार्ट होगा. 2 पे स्टार्ट होगा सर. हाँ. तो यहाँ पे कितना और होगा? 8 ऐड करना है. 2 8 plus है. 10. ये बड़ा है. 12 इधर आएगा. यहाँ पे 12 आएगा. समझ में आया ना अभी तुमको लॉजिक इसका? हाँ सर. ओके, तो इसको सॉल्व कर सकते हो. मेरे को आंसर बताओ फाइनल. मैं फिर पूरा डायरेक्ट लिखता हूँ. हाँ सर. 24 10 10 में 5 कितना? 10 plus 10 20. 20 और 24 बड़ा है. 5 14. 24 plus 14 38. फिर आता है 20 इधर. फर्स्ट और 16. 20 plus 16 36. 38 बड़ा है. 38 plus फर्स्ट का 6 40
4 36 2 का 8 how much 44 same 44 second का 8 elapsed time 48 है 48 सर क्या फाइनल आंसर? हाँ राइट है। हाँ सर 48 अब मैं सबके फाइनल आंसर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर 20 तुम लोग चेक करो, तुम लोगों ने राइट किया क्या रॉन्ग किया। हाँ सर 10 20 24 38 20 36 38 44 बराबर है। और उसके बाद 40 36 36 44 34 48 गॉट इट। आइडल टाइम सर ए का 4 आवर्स है और बी का 2 आवर्स। आया ना, हाँ ठीक है। समझ गए? हाँ ओके नेक्स्ट। ओके अभी ना we'll check when there is a tie, ठीक है। एक there is a tie, then what happens, ठीक है। ओके टाई मतलब समझ में आया ना, कि दोनों का लीस्ट वैल्यू सेम है, तो क्या करने का। ठीक है, so now let's make this